ray optics part which we had left last time. I'm doing sums based on prism and some basic theory of prism we'll be doing, and prism आज खत्म कर देंगे. So tomorrow we can go with optical instruments, and उसके बाद में Saturday Sunday we'll be doing MCQ solving. तो आपका चैप्टर संडे तक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29 we have left, that is sums based on prisms. Everyone will be there, please pay attention. चलो भाई इधर आ जाओ. A prism shown in the figure has refractive index 1.6. Sir, we can't see the question. You can't see the question? Okay, one second. Can you all see now? Yes, sir. Okay. Very set of good questions are there. Question number 29. The prism shown in the figure has a refractive index mu is 1.60, and the angle, that is the refracting angle, is 30 degree. Two light rays P and Q are parallel as they enter the prism. What is the angle between them after they emerge? So now pay attention to me what is happening. Just I'll make the prism. I'll make the prism which is there. This light ray is entering normally, so it will pass normally only. Hello? Yes, sir. Can anyone tell me? Acha, this angle is given as 30. It's given as 30 degree. So can anyone tell me if this angle is 30? But this angle will be how much? 30. 30. Angle between two lines and their perpendiculars are the same. Okay. And I know that this ray will bend towards the base. This is the base of this prism. Na? Hello? Actually, we can imagine that there are two prisms which are stuck to one another. Na? One is the lower prism and other is a upper prism. इसको बाई prism के नाम से भी जानते हैं. बराबर है क्या? Yes, Hello? sir. और ये चीज है, तो ये कोई बता सकता है ये एंगल कितना रहेगा? इसको बोलेंगे r. अच्छा, हाउ टू फाइंड r? कैन आई से mu1 sin i1 is equal to mu2 sin i2? हेलो? Yes, sir. mu1 अंदर वाला कितना mu है? 1.6 into sin 30. बाहर वाला mu is 1 into sin i2. That is sin r. So r comes up to be how many degree? If you see, this is 1.6, sin 30 is half. That will become sin r. It will become 0.8. 0.8 is 4 by 5. 4 by Yes, 5 is 53. 53. So we know that this is going to become 53 degree. Hello? Yes, sir. The same pattern is happening below also with the same ray P, Q. Can I say it will also pass this way and then it will bend and then it will emerge out at this angle somewhat. So this angle is again going to become 53 only. Hello? Yes, This sir. is also 30. Very good. So now they are not asking you this angle. They are asking you which angle? They are asking you this angle. This is emergent ray 1 and this is emergent ray 2. They are asking you this angle between them. That is the emergent ray. Okay. So can you tell me how to do this? Okay. Can anyone tell me? अभी थोड़ा ज्योमेट्री, अभी फिजिक्स खत्म हो गया. ओके. अब कोई बता सकता है कि ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो मुझे ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा? Yes, sir. अच्छा, ये एंगल फाइंड करने के लिए कैन आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन? कैन आई से अगर ये एंगल मिल गया x,
तो ये भी एंगल x ही होगा बिकॉज इट इज द सेम. हेलो, Yes, sir. ये एंगल x है. कैन आई से दिस एंगल विल आल्सो बी x? Yes, sir. ओके. हेलो, हेलो. Can I say Yes, sir. this angle is nothing but the angle of deviation the ray? Because ray को जाना सीधा था, देखो मुड़ गया नीचे. So this is the angle of deviation ना. हेलो, Yes, sir. ए भाई बोलो ना, yes or no sir? Yeah, sir. This is going straight. भाई मैं साइड में फिर से बनाऊं क्या? थोड़ा सी समझो यार, रे ऑप्टिक्स है. रे को जाना ऐसे था, रे ऐसे मुड़ गया, ये क्या मिला? ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया ना. हेलो. Yes, sir. एंड डेविएशन का फॉर्मूला कल ही मैंने बताया था, इट इज r minus i when the ray Yes, is sir. going from denser to rarer. अच्छा, what is r? 53 minus i is 30, तो कितना हो गया? 23. 23 डिग्री. तो 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, तो ये भी कितना हो गया? 46. ये भी कितना हो गया? 46. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अरे भाई हाँ ना बोलो यार, ये तो सिंपल है ना. हेलो, यस और नो? Yes, sir. So this is also the same and this is also going to be the same, and this is also I got as delta, and this angle will become what? 2 delta. Hello, hello. Yes, sir. ओके, थोड़े अच्छे वाले सम्स है, और आप लास्ट ईयर के सम सॉल्व करेंगे तो और मजा आएगा आपको, बिकॉज इट इज विल बी रिलेटेड टू दिस ओनली. थोड़े कॉन्सेप्ट सेम Sir, है. यस. sir, you have already given us a past year question का book that मतलब MTG दे का. दिया तो मैं भूल गया, रह गया. 1 साल का बात है बेटा. इतना बुक्स No, है but नहीं. that doesn't have 2020 का, वो हाँ, वो 2019 का. मैं भेज दूंगा, वो मैं पीडीएफ करके भेज दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना. Yes, sir. Yeah, okay. मैं पीडीएफ करके आपको भेज दूंगा. अगर आपको नहीं खरीदना है वो डोंट बाय. ओके, आई विल No, सेंड no, द no, sir. पीडीएफ. Sir, हाँ, what you say, sir? Because वो physics, chemistry, maths का आपने साथ में दिया था हाँ. 2019 तक देखो, का. एक फायदा ये बुक का क्या है कि इट इज ऑल वीडियो सॉल्यूशंस टू दिस बुक इज अवेलेबल ऑन द नेट. मतलब आपको कोई भी दिक्कत आएगा ना कोई भी क्वेश्चन में, तो उसके साइड में बार कोड है. हेलो, Yes, Yes. sir. मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? साइड में ही क्वेश्चन आंसर के बाजू में है ना बार कोड है, तो बार कोड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सॉल्यूशन उसका वीडियो सॉल्यूशन में बदल के आ जाएगा. गेटिंग इट? तो Yes, sir. वो फायदा हो जाएगा. मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझेगा तो आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है. वो बुक में आप सीधा बार कोड्स के स्कैन करो, एज इट इज आई विल बी सॉल्विंग द सम्स. बट अगर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया गया है, कुछ नहीं समझा एंड टाइम पे, तो आप क्या करेंगे? बार कोड स्कैन करेंगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट वेबसाइट एंड डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा वीडियो वाला. हेलो, Yes, sir. तो वो फायदा हो जाएगा आपको. ओके, गेटिंग है ना? So we'll be following during like lectures with the which book? ड्यूरिंग लेक्चर्स आई विल बी फॉलोइंग द जीकेबी, द आशीष अरोड़ा. ओके, अच्छा, okay. क्वेश्चन तो सेम ही है बेटा, मगर आई विल बी फॉलोइंग दैट ओनली जनरली. ओके, बिकॉज दूसरी बुक में क्या है, सॉल्यूशंस लंबे लंबे दी है. इसमें सॉल्यूशन शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. गेटिंग इट? चलो, ठीक है Fine, भाई, sir. ठीक है यार, पहले ये खत्म कर लेते हैं. ठीक है, चलो इधर देखो. Yeah, yes, sir. तो यहाँ पर अ ग्लास वेसल इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज फिल्ड विद वाटर. तो अंदर पानी भरा हुआ है. सब लोग ध्यान देना बेटा. कितने मीडियम्स आपको दिख रहे हैं? 3 हिसाब में 3 मीडियम दिख रहे हैं आपको. हेलो, Yes, sir. एक दिख रहा है एयर, फिर है Glass. वाटर, फिर है वाटर. हेलो, एयर वाटर ग्लास. हेलो, यस और नो? अरे यार, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, देखो तो. यस और नो? हाँ भाई. ओके. Yes, sir. लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस एक्स वाई. तो एक्स वाई से एक्स वाई फेस पे इट इज नॉर्मली इंसिडेंट. तो जेड ले लेते हैं. ओके, if the refractive index of water is 4/3 and glass is 3/2, total internal reflection will occur at glass air interface of xz for sin theta, okay, greater than how much? अभी मेरी बात सुनना, बहुत मजा आने वाला है. सब लोग इधर मेरी बात सुनना. एवरीवन पे अटेंशन. देखो मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ.
Pay attention to me. Hello. Are you all there? Hello. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से रे जो आएगा सपोज इधर पड़ा, बिकॉज ये तो नॉर्मल है तो नॉर्मल ही जाएगा ना सीधा। इतना agree है, इतना अग्री करते हो? Yes, sir. अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये अगर थीटा है और तो ये एंगल कितना रहेगा? Theta. थीटा ही रहेगा। कैसे पता चला आपको थीटा? देखो ना यार, ये इससे परपेंडिकुलर है और वो ये उससे। Open. Yes, sir. वही तो चलेगा ना। Yes, sir. पूरा 2 साल हमने यही काम चलाया है भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम। Same. अब ये पानी है, अब वो कौन से मीडियम में जा रहा है? Glass. Glass. पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। कौन 3/2 बड़ा कौन छोटा, कौन डेंसर कौन रेयर? Water error, glass denser. वाटर इज Error. ग्लास इज। Denser. Denser. क्या टीआईआर का संभावना है? टीआईआर का संभावना है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है यार, क्या बोल रहे हो? नहीं है भाई, रेयर टू नहीं है। डेंसर में कैसे होगा? Yes, sir. बराबर है। Yes, sir. It will bend towards the normal or away from the normal. अरे जैसे अंदर एंट्री करेगा ना, यहाँ से रिफ्रैक्शन होने वाला है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे मुड़ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. मुड़ जाएगा, बराबर। Yes, sir. अच्छा, कैन आई से ये आर है मेरा, बराबर क्या? कोई रिफ्रैक्शन वाला है, ये इंसिडेंस एंगल है ना भाई। हेलो। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कैन आई से अगर ये आर है तो ये भी तो आर है। ओके, बराबर है। हेलो। Yes, sir. अब वो इधर बाउंड्री पे आ गया। अच्छा, ये इसके बाजू में क्या एयर है? Error. एयर का म्यू तो 1 होता है, इसका ग्लास। अभी कौन से मीडियम से ट्रैवल कर रहा है वो? Denser to rarer. डेंसर टू रेड। क्या टीआईआर का संभावना है? Yes, sir. हाँ है, और कह रहा है कि टीआईआर विल अकर एट द ग्लास एयर इंटरफेस। टीआईआर कब होगा? टीआईआर जस्ट कब होगा? अगर ये क्रिटिकल एंगल बन जाए तो ये ऐसे ऐसे जा जाएगा, ऐसे चला जाएगा। Yes, sir. Yes, अरे sir. बोलो ना यार। तो अगर ये सी है तो ये भी तो सी होना मांगता है। Yes. मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. मतलब ये सी होना मांगता है, ये सी होना मांगता है। दिस इज सी। अच्छा, अभी हम लोग पीछे से आगे जाते हैं। हम लोग को ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है ये थीटा है ना बेटा। Yes, sir. अरे यार, यही तो ढूंढना है ना मुझे, बराबर Yes, क्या? sir. तो मैं पीछे से आगे जाऊंगा, आगे से पीछे नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे सी का वैल्यू मालूम नहीं है। अच्छा, राजवीर मुझे बताएगी कि सी का वैल्यू कैसे ढूंढना है बेटा। साइन सी का फॉर्मूला क्या है? Sin C is one by mu denser to respect to rarer. हाँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी रेरर क्या है और डेंसर क्या है? जब सी होने वाला है तो रेरर कौन है और डेंसर कौन है? रेरर एयर है, Rarer air है. वाटर नहीं है एयर भाई, वाटर Yes, नहीं है sir. Yes, रेरर। sir. हेलो। Yes, sir. Yes, सी sir. इधर हो रहा है, सी इज हैपनिंग हियर, Yes, EIR sir. is happening here, तो यहाँ पे रेरर कौन है? तो साइन सी विल बिकम 1/1.5 3/2, बराबर क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन सी विल बिकम 2/3। हेलो Yes, sir. Yes, sir. यार, बहुत अच्छे अच्छे समझ है यार। ओके, भुज Yes, sir. नीड व्हाट्स हैपनिंग। चलो, अभी अभी इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग पीछे, और कौन से फेस पे जाते हैं? अभी ये फेस, ये एक फेस था, ये फेस नंबर 1 था, बराबर है, केस 1। हेलो, Yes, sir. ये केस 1 मैंने कर लिया इधर। अब इधर आते हैं, ये फेस पे आते हैं। ये कौन सा केस है हमारा? Yes, sir. एकदम एकदम आसान बात है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? μ1 sin i1 is μ2 sin i2। Yes, जब sir. भी sir. जब Yes, भी sir. Yes, रिफ्रैक्शन sir. होगा तो μ1 sin i1 is μ2 sin i2। μ1 sin i1 इसमें एकदम एक्सपर्ट हो गए आप लोग, कोई टेंशन ही नहीं है। μ1 कौन है? अंदर से बाहर आता है। μ1 पानी है, पानी 4/3। आई कितना है उसका? साइन थीटा है, थीटा 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 थीटा। हेलो। Yes, sir. μ2 ग्लास है, Glass ग्लास। 3/2. 3/2. और साइन i/2, साइन i2 से साइन सी, बट साइन सी तो यहाँ से मालूम है By मुझे 3. Yes, sir. 2/3. 2/3। तो ये 2/3 और 3/2 तो वैसे ही उड़ गया। तो साइन थीटा क्या हो गया आपका? 2/4, दैट इज आधो।
सो आधो मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया बच्चा? सर 3/4 सर 3/4 होगा। 3/4 सॉरी 3/4 भी आता ही है आपको। 3/4 क्या होता है? 0.75 नहीं यार 3/4 साइन थीटा 3/4 नहीं रहेगा, तो साइन थीटा विल बिकम 3/4 ओनली। बस इतना ही है। तो 3/4 और कुछ मैच नहीं करेगा, बराबर है क्या? यस Yes, सर हेलो यार ये थोड़ी होगा। गेटिंग इट? ये आंसर है। गेटिंग इट? यस yes, सर sir. मतलब साइन थीटा विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 0.75 बिकम 3। मतलब ये क्या 45 से ज्यादा होएगा ना? हेलो यस 0.707 से ज्यादा है ना? बराबर क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो 3/4 तो दिया ही हुआ है, इधर तो है ही ना, आंसर तो दिया ही हुआ है इधर। ठीक है। गेटिंग इट ना? हेलो समझ में आ गया? आई यस थिंक इट इज क्लियर ओनली। आगे कोई जाके दिक्कत होने वाली नहीं है, इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग सम्स है। ओके बेसिक इंट्रोडक्शन ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 31st की बात करते हैं बेटा। A light ray is going through the prism with an angle of 60 degree. Angle of prism मतलब क्या है? A दिया ए 60 degree. Is found to deviate at least by 30. Okay? हेलो यस सर मतलब Yes, sir. वो रे का जो डिविएशन है, हेलो ये रे जो है इसका डिविएशन कितना डिग्री है बेटा? 30 30 डिग्री। 30. व्हाट इज द रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? म्यू चाहिए मुझे। कैन आई से डेल्टा इज 30 डिग्री एट लीस्ट बोला है, देखो ना लीस्ट। Yes, sir. हेलो यस व्हाट इज द सर रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मतलब म्यू का रेंज चाहिए, म्यू का रेंज। 3. अब ये जरा पढ़ो, अ लाइट रे किसकी बात हो रही है? एक ही लाइट रे की बात हो रही है। हेलो यस सर Yes, sir. गोइंग थ्रू द प्रिज्म विद एन एंगल is found to deviate at least by, अच्छा is this the angle of minimum deviation? No. Okay, this is not the angle of minimum deviation. ये बोल रहा है कि वो रे के लिए कितना बेंड हुआ? वो रे के लिए 30 एक रे था उसने लीस्ट कितना बेंड किया बेटा? 30 30. 30 डिग्री। ओके दूसरी भी रेज हो सकती है जिसका जो डेल्टा मिनिमम रहेगा उससे कम होगा। हेलो यस सर यार ये मिनिमम डिविएशन नहीं बोला है इन्होंने। इन्होंने कहा कि वो रे इज बेंडिंग लीस्ट बाय 30 डिग्री. It is not the angle of minimum deviation. Maybe it could happen that delta minimum could be lesser than 30. हेलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? यस सर Maybe it could happen that other ray ये लाइट रे नहीं, other ray could deviate less than 30. ठीक है हम लोग म्यू निकालते हैं। फॉर्मूला पता है ना, साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। हेलो यस सर Yes, sir. म्यू कितना है? म्यू तो पता ही नहीं है। साइन ए प्लस डेल्टा एम इज 30 60 बाय 2 तो साइन 60 बाय 2। हेलो यस सर Yes, sir. ये 90 बाय 2 45 दैट इज 1 बाय रूट 2 तो साइन 30 हाँ तो विल बिकम रूट 2। यस सर अच्छा भाई ये तो म्यू है, दिस इज म्यू फॉर मिनिमम रूट 2। डिविएशन नो 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 ओनली फॉर दिस रे। हेलो यस सर ये खाली जो रे की बात हो रही है अ लाइट रे। ओके रेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव दूसरी वाली जो रे होगी वो शायद 30 से कम बेंड हुई रहेगी। हेलो यस सर तो कैन आई से डेल्टा एम एंड म्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? दिख रहा है आपको? साइन Yes, है ना sir. बस साइन तो हम्म इसका मतलब अगर डेल्टा एम कम हो गया तो म्यू भी कम हो तो जाएगा। वो भी कम हो जाएगा. यस सर तो म्यू का रेंज जो रहेगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू रूट. द रेंज। समझ में आ रहा है क्या? हेलो यस सर इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेटर देन मत लिख देना। अगर आपने ग्रेटर देन कर दिया इसका मतलब आप कहेंगे कि वो जो दूसरा वाला रे रहेगा वो ओके उसका डेल्टा ज्यादा होगा। गेटिंग इट?
Hello, hello. Yes, sir. This ray Why did is you take it bending. less than equal to? That only I am telling you. See, try to listen. A light ray. I have selected this word first. This is the thing. A light ray. पहले वाला. This is a light ray. We are talking about which ray? Only one ray. Is bending how much? Is deviating how much? 30 30. degree. Okay. Getting it? Acha, if we talk about another ray, it could bend, it could deviate by less than 30 also. Hello? Yes, बिकॉज sir. अगर ये मिनिमम डिविएशन है 30 का इस रे के लिए, तो हो सकता है दूसरी रे के लिए मिनिमम डिविएशन इससे कम हो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है. हेलो Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन, डिड यू अंडरस्टैंड Yes, that yes. this ray का minimum deviation is 30, maybe another ray का minimum deviation will be lesser than this, because we are not talking about maximum deviation, we are talking about minimum deviation over here. तो mu इस रे के लिए तो √2 होगा, मगर दूसरी वाली रे के लिए क्या हो जाना है? हेलो, Lesser than root. lesser than √2. So the total range of all the rays will be mu is what, sir? Less than √2. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इसको प्लीज. कुछ आर्ग्यूमेंट है आपका तो बताओ. हेलो यार, तो आगे बढ़ता है. हेलो Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. A ray of light falls normally on the refracting face of the prism. ये तो इजी है. नॉर्मली मतलब क्या? हाउ मच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट फेस? 0. 0. ऐसे जाएगा ना. तो I1 is 0 and R1 is also 0. बराबर क्या? Yes. This will be what? R2. And he is telling you angle of the prism so that the just ray fails to emerge. Fails to emerge मतलब it is grazing. Hello. So how much Yes, is the angle sir. of emergence? 90. I want to find the angle of the prism. मतलब A मांगता है. Mu is given as 3/2. Very simple it is. Hello. Yes. First phase के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना है. This is which phase? First phase. Which phase? Second phase. Second phase के बारे में बात करेंगे. Can I say mu1 sin I1, mu2 sin I2? mu1 is अंदर वाला, that is 3/2. Sin R2, mu2 is 1, sin 90 is 1. So sin R2 is going to become 2/3. Hello. Yes, sir. So can I say R2 will become? Yes or no? Yes, sir. Achha, you know this formula that A is equal to R1 plus R2, but R1 is 0. R2 is sine inverse of 2/3. So what is A also equal to? Sine inverse of 2/3. The good level neat question. हाँ. हेलो, कुछ करना ही नहीं है, मतलब एकदम इजी है. हेलो, गॉट इट ना? Yes, sir. 33. A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one of the face of the prism which has angle 30 degree. क्या है बेटा ये? Which has an angle of 30 degree. So prism A is equals to 30. हाँ, A is 30, sorry. So I कितना है? 60. 60. 60 degree. A is 30. The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. ये क्या है? The angle between the emergent ray and the incident ray is angle of deviation. Hello. Yes, sir. ये angle of deviation. Show that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges and
कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। एकदम इजी है, देखो इधर क्या करना है। ये आई है, आई कितना है 60. 60. 60, ए कितना है 30 है, और कह रहा है कि अच्छा ठीक है ये इतना दिया है, और डेल्टा, अच्छा एक फार्मूला हमको मालूम है, ए प्लस डेल्टा इज आई प्लस ई। Yes, sir. Yes, sir. A is 30, delta is 30, I is 60, तो E, तो ये 60 और 60 वैसे ही उड़ गया, तो E का वैल्यू कितना आएगा 0। हेलो, Yes, sir. E का वैल्यू 0 मतलब क्या, इट इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द प्रिज्म, Yes, sir. इट इज इमर्जिंग। Perpendicular to face of prism. अच्छा अगर E 0 है तो R भी 0, R2 भी 0 होना मांगता है, Yes, sir. Yes, sir. तो मालूम ही है ना। ये तो रहेगा, सही है, ये तो ऐसे जाएगा, और कह रहा है फिर ये जब बाहर निकलेगा तो ये ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही कुछ है, बराबर है क्या। Yes, sir. Yes, sir. ये R2 है। अच्छा अब हम आते हैं कौन से फेस की तरफ, दूसरा वाला फेस तो खत्म हो गया, पहले वाले फेस के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, इस फेस की बात करेंगे फर्स्ट फेस में, तो क्या लगाना है हमको, μ1 sin i1, μ2 sin i2। हेलो, μ1 कितना है, μ1 is 1, Sir, sin i1 is sin 60। हेलो, so first shouldn't we use A is equal to R1 plus R2 to get value of R1 and then we can use it? Because if we use it directly, so दो unknown है, the refractive index of prism and μ1 I. में हाँ 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 हाँ, सॉरी, ठीक है, वेरी गुड, वंश ने सही कहा कि भाई क्या करना है हमको, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 करना है, ये R1 है, तो A इज 30, R2 तो 0 है, R1, तो R1 का वैल्यू 30 मिल गया, ठीक है। अब तो इजी हो गया ना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, बराबर है क्या, Yes. दैट इज साइन 60 अपॉन साइन 30, कितना होता है √3. मिल गया ना भाई, तो हमको ये भी मिल गया और ये भी हमने प्रूव कर लिया। हेलो, Yes, sir. these are all NEET level questions, हाँ, एक पार्ट दो पार्ट, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी है। नेक्स्ट वन, 34 question, 34th, a ray of light is passing through a prism, has a refractive index √2, suffers minimum deviation, suffers क्या भाई, Minimum Minimum deviation. it is found that the angle of incidence is double the angle of refraction, I is 2r, बराबर क्या, Yes, sir. within the prism find the angle of prism, क्या ढूंढने का, a ढूंढने का। अभी इधर है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला समय बहुत बार आ चुका है जेई के अंदर। मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, प्रिज्म फॉर्मूला जब होता है मिनिमम डिविएशन से, द sin a plus delta m divided by 2 upon sin a by 2। Sin A by 2. Yes. Can I write this also as sin I upon sin r? अरे बिकॉज याद है ना, Yes, मिनिमम sir. डिविएशन पे आई ये Yes, होता है और sir. आर ये होता है, और सबको मालूम है यार ये होता है, बराबर है क्या। Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आई इज 2r, ये बोल रहा है, बराबर क्या। Yes, sir. हेलो, आई इज, 2R. 2R. तो क्या मैं इसको आई रहने देता हूँ, मैं इसको r की जगह लिख सकता हूँ i by 2। I by 2. Yes, sir. अब इधर ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत है। कैन आई राइट दिस एज 2 sin i by 2 into cos i by 2 अपॉन sin i by 2। हेलो, Yes, sir. ये तो वैसे ही उड़ गया, म्यू का वैल्यू मुझे पता है √2 है, 2 है, cos i by 2 ये 1/√2 हो जाएगा, cos i by 2, चल बोल यार कितना होता है, is 90. 45 degree. 45, तो i will become 90। Yes, sir. अच्छा एक बार i 90 मिल गया, तो i तो 90 मिल गया, बट व्हाट इज i इक्वल टू, i is A plus delta m. Uh, a plus delta m divided by 2, yes, sir. and r is a by 2, Yes, sir. but I know that r is also i by 2। Yes, sir. हेलो, मालूम है ना r is i by 2, देखो तो कैंसिल हो गया, तो i will become equal to what, a ना, A 90.
हेलो 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 कुछ भी करके आंसर लेकर आ जाने का, बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ ओके, मैथमेटिक्स वाला एक्सपर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हैं प्रिज्म में। ओके, एकदम स्लो जाना है हमको, 1 महीना हो गया शायद ये चैप्टर को, बराबर है क्या? मगर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपको बराबर से आना चाहिए। 35 a ray of light undergoes deviation of 30 degree when incident on an equilateral prism of refractive index √2। deviation कितना है? 30. equilateral prism मतलब a 60 डिग्री है, refractive index √2 है। find the angle suspended by the ray inside the prism within the base of the prism with the base of the prism मतलब बेस के साथ में कितना एंगल है। एकदम इजी फॉर्मूला है, देखो मेरी बात सुनो। ओके, कितना डिविएशन दिया है बेटा? 30. और ऐसे बोल रहा है कि बेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, बेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, मैं एक फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला लिखता हूँ, म्यू इज इक्वल टू sin a plus delta m divided by 2 अपॉन Sin A by sin a by 2। म्यू कितना है? √2 है। sin a plus delta m divided by 2, a is 60, डेल्टा एम को डेल्टा एम रहने देता हूँ, डिवाइड बाय डेल्टा एम मालूम नहीं है, ये डेल्टा एम नहीं है भाई, ये हेलो, ये तो नॉर्मल डेल्टा है। हेलो, Yes, sir. अपॉन साइन ए बाई 2 साइन 60 बाई 2 कितना होता है ये देखना जरा। साइन 60 बाई 2 30 होता है, साइन 30 हाफ होता है, हाफ और √2 तो ये हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का साइन इनवर्स निकालेंगे तो 45 आएगा, 45 2 सा 90 आएगा, 90 माइनस, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कर दिया? हेलो Yes, sir. ए, तो डेल्टा एम कितना आया? कितना आया? 30. degrees. और यहाँ पे डेल्टा कितना दिया है? मतलब दिस इज एक्चुअली विच डिविएशन? minimum Minimum deviation. तुमको समझा मैंने क्या क्या प्रोसेस लगाया? पहले मैंने डेल्टा एम ढूंढा, क्योंकि जब डेल्टा एम होता है तो रे, जो अंदर वाला रे होता है ना, रिफ्रैक्टेड रे, इट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। हेलो कुछ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे कुछ समझ में आ रहा है? कल ही बताया था मैंने, अगर इक्विलैटरल प्रिज्म होगा तो रे जब अंदर जाएगा मिनिमम डिविएशन It's सफर parallel करेगा, तो दिस इज पैरेलल टू दिस ना, to the बराबर base. क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. यही तो पूछ रहा है, देखो ना, व्हाट एंगल इज सस्पेंडेड बाय द रे इनसाइड द प्रिज्म विद द बेस ऑफ द प्रिज्म, सो इट इज पैरेलल मतलब 0 डिग्री है, बराबर है क्या? Yes, हेलो, sir. तो इसलिए मैंने डेल्टा एम ढूंढ लिया, क्योंकि डेल्टा एम 30 है और ये भी 30 पे है, इसका मतलब ये मिनिमम डिविएशन की बात हो रही है, बराबर क्या? हेलो, Yes, sir. और Yes, sir. मिनिमम डिविएशन पे इक्विलैटरल प्रिज्म में रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, गेटिंग इट? Yes, sir. हेलो, क्या प्रोसीजर लगाया, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, लास्ट ईयर के बोर्ड के सम्स, बोर्ड क्या है जो भी है आपका, एनटीए वेंटीए, उसके जो सम्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना पोर्शन आपने किया है ना 2 साल, वो पूरा फिल्टर करके आपके हाथ में दे देगा। हेलो, समझ में आ रहा Yes, है ना sir. क्या कह रहा हूँ मैं? हर एक क्वेश्चन को फिल्टर करके आपके हाथ में दे देगा कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज ज्यादा पढ़ना है, ये चीज कम पढ़ना है। लास्ट ईयर के सम्स आपको सॉल्व करना है। जनरली आई विल बी सॉल्विंग 20, 19 एंड 18, और उसके पहले के सम्स आपको सॉल्व करना है जनरली। ओके, वैसे ही पीएमटी में विल बी सॉल्विंग द 32 इयर्स बुक, तो मैं टाइम टेबल भेज दूंगा उसका, मगर सॉल्व करना पड़ेगा उसको। डीसी पांडे भी करो, उसके साइड बाय साइड ये भी करो, और फिल्टर करके रखो कि ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा बार आ चुका है। ओके, आपको पता चलेगा कि वो रिपीट होगा जनरली। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है ये? लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ आई on one planar end of a transparent cylindrical rod of refractive index mu. Find the least value of mu so that light entering the rod does not emerge from the curved surface. मतलब क्या यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, और इस सरफेस पे क्या होना चाहिए? does not emerge मतलब क्या? अरे भाई बेंड हो जाना चाहिए। अरे भाई बोलो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, बराबर है क्या? मतलब Yes, ये sir. जो एंगल है, वो क्रिटिकल एंगल मिनिमम होना मत चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. इसका मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो जाना चाहिए। हमको क्या निकालना है?
हमको निकालना है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू so that light entering the rod does not emerge from the curved surface irrespective of the value of I. मतलब ये कोई भी वैल्यू होने दो, ये I का कोई भी वैल्यू होने दो, ओके, यहां से वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओके। अच्छा, कल मैंने आपको एक शर्त बताया था, क्या शर्त बताया था कि अगर प्रिज्म में कुछ भी एंट्री होगी तो लाइट बाहर कब नहीं निकलेगा, with this angle A should be greater than equal Greater to than 2C. हेलो, Yes, अरे sir. भैया याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है क्या, है यस और नो, मतलब अरे अगर कोई भी एंगल पर अंदर जाए, यहाँ पर जाए और यहाँ पर आके फिर से अंदर आ जाए, बराबर क्या, Yes. ये हमने किया था कल। इसका प्रूफ अगर आपको देखना है तो डीसी पढ़ने में पूरा प्रूफ भी दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था एक चीज मैंने आपसे कही थी कि प्रिज्म आप किधर भी बना सकते हो, मतलब मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर एक ग्लास स्लैब है और अगर रे ऐसे जा रही है तो ऐसे बेंड होगी, बराबर क्या, Yes, हेलो, sir. इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ऐसे बेंड होके बाहर आ जाएगी, बराबर। तो Yes, इस sir. पार्ट को हमको प्रिज्म पकड़ना है ना, ये जो पार्ट है इसको प्रिज्म पकड़ना है। कौन से पार्ट को प्रिज्म पकड़ेंगे, मैं थोड़ा कलर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये पार्ट को प्रिज्म पकड़ना है, अरे दिस इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, हेलो, Yes, sir. अरे बोलो यार, कुछ बोलो, समझ में आ रहा है क्या, ओके, मैंने आपसे कहा था करेंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रिज्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर सिलेंडर में क्या प्रिज्म बनाएंगे हम लोग, क्या ये इसको मैं प्रिज्म बना सकता हूँ, ये हुआ, मेरी बात सुनो, ये तो अगर सामने का फेस देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, कैन आई से दिस इज नथिंग बट द प्रिज्म एंड दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, बोलो, हेलो, Yes, sir. देखो ना, ऐसे ही अगर इसको सामने से देखेंगे फ्रंट व्यू से तो ऐसे ही दिखाई देगा, और ये तो ऐसे जा रही है कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, फिर बेंड हो रही है, फिर इधर से उसको क्या करना है, मिनिमम क्रिटिकल एंगल पास करना है, बराबर क्या, Yes. कैन आई से दिस इज ए बिकॉज दिस इज जनरली योर प्रिज्म, ये है ना आपका प्रिज्म, ये दिख रहा है Yes, एबीसी, sir. हेलो, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है यहाँ पर, ए हेलो, गेटिंग इट, Yes, sir. अच्छा ठीक है सर, तो कैन आई से ए शुड बी ग्रेटर देन 2C, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस, और मुझे चाहिए म्यू का वैल्यू। अच्छा, कैन आई पुट साइन ऑन बोथ साइड, साइन ए इज ग्रेटर देन साइन, क्या, एक काम करते हैं, इसके पहले हम लोग है ना डिवाइड कर देते हैं 2 से, बिकॉज साइन सी मालूम है ना, साइन 2C थोड़ी मालूम है मेरे को, तो कैन आई राइट दिस एज A/2 इज ग्रेटर देन C, हेलो, Yes, sir. कैन आई राइट दिस एज साइन A/2 शुड बी ग्रेटर देन साइन C। Yes, sir. अच्छा, यू नो साइन C का फॉर्मूला 1/μ, Yes, sir. हेलो, तो साइन A/2 should be greater than 1/μ, टेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर। अच्छा, व्हाट इज A का वैल्यू, 90 है ना, देखो तो, अरे यार ये 90 है ना, हेलो, Yes. ये 90 ही तो है, ये कितना हो जाएगा, 90/2 कितना होता है, 45. √2, म्यू टेंसर विद रिस्पेक्ट टू एरर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, क्या हो जाएगा, नहीं ये A/2 यही कर रहा हूँ ना मैं, Sir, it should be 1/√2. एक मिनट, ये हो गया, ये बराबर है साइन A/2 शुड बी ग्रेटर देन, Yes, sir. 1/√2. हाँ दिस इज 1/√2, आई एम सॉरी, सो इट विल बी, मिल गया ना, फिर आंसर तो मिल गया, Yes, sir. म्यू शुड बी लेस देन, नहीं म्यू शुड बी ग्रेटर देन
उधर जाएगा ना? हेलो, Yes. अरे इसको उधर कैरी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes. ये और इक्वल टू भी आएगा बिकॉज बीच में इक्वल टू साइन भी है ना, सही है ना? Yes. हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? ये कंडीशन काम लगेगा फॉर नो इमरजेंस, को बोलते हैं नो इमरजेंस कंडीशन, नो इमरजेंस कंडीशन, नो इमरजेंस कंडीशन. So what equal to is only here, right? Because we don't need any emergence. So like if हाँ, it's equal to us, it will slide on the surface. yeah, it will slide, it will Okay. graze along the surface. Yes, yes, yes. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिर थोड़ा थियरी करना है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रिज्म का तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ऑप्टिकल हम लोग कल कर लेंगे सिनॉप्सिस, और परसों और उसके बाद में संडे को वील बी डूइंग सॉल्विंग, एंड नीट का सॉल्विंग आई विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है भाई, 45 डिग्री इज 1.6, मतलब म्यू कितना है? 1.6. Refracting angle is 45 for a certain monochromatic ray. For a certain ray, what will be the minimum angle of incidence for this ray? Only for this ray they are asking you. Okay, I चाहिए I, so that there is no TIR on the second phase. एकदम easy है, वही first phase second phase का कहानी है, बराबर है क्या? Yes, sir. नीट वाले एकदम ध्यान से सुने, नीट वाले बहुत ध्यान से सुने, ये सब आपके लिए आता है. तो ये ऐसे है, कह रहा है ये क्या है? I है, ये क्या है बच्चा? R1, ठीक है, R2, बट इसको क्या चाहिए? नो इमरजेंस कंडीशन, मतलब ये ऐसे हो जाना चाहिए ना बेटा, तो इमरजेंट एंगल कितना हो जाना चाहिए? 90. हेलो, हेलो, यस और नो? एंड ए का वैल्यू आपको मालूम है 45. बी ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द व्हिच फेस, First, दिस इज व्हिच फेस? सेकंड फेस. second हमेशा phase. हमेशा यहाँ पर याद रखना, वैल्यू मालूम आपको सेकंड फेस का है तो सेकंड फेस से चालू करो और फर्स्ट फेस पे जाओ. फर्स्ट फेस के लिए तो कोई स्पेसिफिकेशंस आपको पता ही नहीं है, तो सेकंड फेस ये मेथड आपको याद रखना है, बहुत फेमस सम्स है. सेकंड फेस की बात करेंगे, क्या लगाना है हमको? हेलो, mu1 इज sin इक्वल I टू, by हाँ वो भी कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर टू, ये भी कर सकते हैं. म्यू वन साइन आई वन इज म्यू टू साइन आई टू. म्यू कितना है? 1.6 है. साइन ई साइन 90, साइन आर टू, तो आर टू विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1.6. हेलो, yes, sir. ये आपको 38 डिग्री, 38.7 डिग्री आएगा. ये कर सकते हैं आप लोग, सब दिया रहेगा साइड में, टेंशन लेना मत. अच्छा, R2 मिल गया, इसके बाद में क्या करना है? यू नो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सेकेंड स्टेप, क्योंकि R1 पहचानना पड़ेगा ना, और R1 के लिए A को काम में लाना है. A कितना है? 45 डिग्री. R1, R2 is 38.7 degree. So this will be 6.3 degree. Yes, sir. अभी कौन से फेस पे जाना है? First phase. First. फर्स्ट फेस का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन आई Mu. अपॉन साइन R1. Yes. म्यू तो मालूम है आपको, म्यू कितना है? 1.6 है. साइन आई पता नहीं है, साइन 6.3 डिग्री. यहाँ से आए वही साइन इनवर्स वाइन इनवर्स निकाल के आप लोग क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो. गेटिंग इट और नॉट? ये Yes, sir. मेथड Yes, sir. क्लिक मार्क करके ध्यान रखना, फ्रॉम सेकेंड फेस यू हैव टू टर्न टू द फर्स्ट फेस. Okay, if it comes it is bonus for you. Got it? और वैल्यूज भी इजी रह गए, ऐसे कोई टफ वैल्यूज नहीं रह गए. 30 60 में ही खेलना है. 30 60 37 53. हेलो, यस और नो? ठीक है ना? Yes, sir. ये चीज ठीक है. अभी हम लोग आते हैं, एक बेसिक कंडीशन मुझे आपको सिखाना है. सबसे पहले मैं बात करूंगा डिविएशन की, थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग डिविएशन की. मैं यहाँ पे ही सिखा देता हूँ rather than going to white screen. डिविएशन, बिकॉज सम्स ऑन डिविएशन आ रहा है, एकदम वास्ट चैप्टर है. ओके, तो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा इसको. अच्छा, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है? इन रिफ्लेक्शन हाउ मच इज द एंगल ऑफ डिविएशन? अरे यार क्या करते हो ऐसे यार? ये रिफ्लेक्शन है, ये मिरर है ना. हेलो, रे आया,
एंगल ऑफ इंसिडेंस है और चला गया। अच्छा ये भी तो आए है, रे को जाना स्ट्रेट था, मुड़ गया इतना, कैन आई से दिस इज द डिविएशन? हेलो, Yes, sir. अरे अभी तो बोलो हाँ, यस और नो 180 डिविएशन। minus I. Yes, sir. हाँ 180 माइनस 2 आए, 180 Yes, माइनस sir. 2 आए। 2I. तो डेल्टा अभी याद रखना है इसको, बाय बार बार मैं नहीं सिखाऊंगा, 180 माइनस 2 आए, गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. इन रिफ्रैक्शन बोलो, how much is the angle of deviation? I minus R come. I minus R depending on whether it is going from rarer to denser Denser or denser to rarer. denser to rarer, बराबर क्या? Yes, sir. ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है। अभी तीसरा कंडीशन जो हमने आपको मिरर में सिखाया था, अगर दो मिरर 90 डिग्री पर है और रे अगर ऐसे आता है तो रे फिर से मुड़ के ऐसे हो जाएगा, ना हाउ मच इज द नेट डेविएशन? 360 360 minus minus 2 theta, where theta is the angle between the two prisms। अच्छा यहाँ पर तो 90 है, 90 है मतलब ये हो जाएगा 360 minus 180, 180 मतलब एंटी पैरेलल हो गया ना रे, तो देखो ना Yes, ऐसे sir. आया, ऐसे आया और फिर एंटी पैरेलल मुड़ गया, बराबर है क्या? Yes, sir. ये सब चीजें बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। अच्छा फोर्थ, एक स्पीयर की बात करता हूँ मैं, स्पीयर की। अरे यार है, अच्छा ये जो रहेगा ये सेंटर पे जाके मिलेगा ना, ये नॉर्मल, तो ये आए है। हेलो, Yes, sir. अच्छा ये आर है, अच्छा इधर का भी नॉर्मल कहाँ मिलेगा? सेंटर पे, तो ये भी आर होगा और ये भी आई ही रहेगा, Yes, sir. स्पेसिफिकेशन सेम है, वो नॉर्मल वही सेंटर पे मिल रहा है। हेलो, Yes, sir. अरे यार बोलो ना, गेटिंग इट और नॉट? नॉर्मल सरफेस वही है, एंगल वही बना रहा है वो, ये समझा गया आप लोग को? Yes, sir. व्हाट इज द डेल्टा एट द फर्स्ट फेस? आई माइनस आर। I minus. हेलो, व्हाट इज द डेल्टा एट द सेकंड फेस? आल्सो आई माइनस I आर। minus R. सो नेट डेल्टा क्या हो जाएगा? 2 times of I minus R. रिमेंबर, because there are how many refractions happening 2 refraction. with the same specification? Hello, Yes, sir. ये समझा ना? आई और आर कैसे है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो सेम लाइन पर मिल रहा है, बिकॉज नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस से। गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है। फिफ्थ, और कोई डिविएशन के बारे में पढ़ा है हमने? यस, डिविएशन इन अ प्रिज्म। प्रिज्म में कौन सा डिविएशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा? ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। हेलो, Yes. अच्छा और हमने थिन प्रिज्म में भी बात कर लिया, क्या फॉर्मूला पढ़ा? डेल्टा इज, क्या पढ़ा यार? A mu minus 1. हाँ, इतने सब डेल्टास आपको याद रखने हैं। हेलो, Yes, जितने भी sir. डेल्टास हैं आपके सामने, ये सब आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, और कुछ आएगा नहीं इसके सिवा। जनरली अगर डेल्टा आ गया तो डेल्टा की कहानी ये सब है। Yes, sir. अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, एक मिनट। Can you see the white screen? Sir. Okay. Now I'm discussing a last basic theory of prism. And then tomorrow say we can start with optical instruments. It is called as dispersion without deviation.
थोड़ा ध्यान देना बेटा, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन prisms and deviation without dispersion. हेलो हेलो, Yes, sir. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने दो प्रिज्म्स लगा दिए। पहले वाले में क्या हो रहा था? बोलो बोलो, देख के पढ़ के बोलो यार, क्या हो रहा था? Dispersion over Deviation, deviation. हाँ, पहले वाले में डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन हो रहा है, एंड सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? Deviation without dispersion. अब मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, वी आर मेकिंग दो प्रिज्म्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक ग्लास स्लैब जैसे बनेगा, सुनना मेरी बात, मेरी डायग्राम थोड़ा कॉपी कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट में ले लेना। आई एम डूइंग डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन होने वाला नहीं है। वी आर पासिंग विच लाइट बेटा? ये बोलो मैन, व्हाइट लाइट यहाँ पर आके मुड़ेगा। अच्छा, दिस इज वन रिफ्रैक्टिंग फेस एंड दिस इज अदर रिफ्रैक्टिंग फेस, दिस इज क्राउन ग्लास, हेलो, एंड दिस इज विच ग्लास? फ्लिंट ग्लास। अब यहाँ पर डिस्पर्शन हो रहा है, मतलब रेड भी बटेगा और वायलेट। बट जब दूसरे प्रिज्म से वो जाएगा, दूसरा प्रिज्म उल्टा है ना, फ्लिंट वाला, तो उसके जो डिस्पर्शन है उसको वो कैंसिल कर देगा, ऑफसेट कर देगा, मतलब मिला देगा। ये ऐसे मुड़ गया, ये बोलेगा भाई इधर आ जा, और ये ऐसे मुड़ गया, ये बोलेगा इधर आ जा, एंड दोनों मिलकर फिर से व्हाइट लाइट निकालेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्पर्शन हुआ यहाँ पर? डिस्पर्शन हुआ, बाहर निकला तो, No. बट डिविएशन हो गया। डिविएशन हो गया मतलब क्या? ये जो इनिशियल व्हाइट रे था वो कुछ और जा रहा है, और ये जो है इसका रास्ता कुछ और है। दिख रहा है आपको? Yes. इसका रास्ता कुछ और है। थोड़ा इसका रास्ता थोड़ा बदल देता हूँ, इसका रास्ता चलेगा ना? हेलो, Yes. यहीं से ये डिविएशन हो गया ना। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? डिविएशन विदाउट, हेलो, Yes. Dispersion. मैं आपको सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ डिविएशन विदाउट। जनरली पूछा जरा भी नहीं जाता ये, ओके? तो अगर पूछ लिया तो ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा वाला कौन सा बचा है हमारे पास? दिस इज दिस, हाँ। अभी कौन सा बचा हमारे पास, जल्दी बोलो? Dispersion without deviation. Dispersion without. डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। सेम डायग्राम बनाना है ये। कौन सा ग्लास है? दो ग्लास है, एक प्रिज्म इधर है, विच क्राउन ग्लास, और ये किसका है? फ्लिंट ग्लास। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। फ्लिंट ग्लास, दिस इज ए डैश। रे ऐसे गया, बिखर गया, किसमें बिखरा? रेड एंड, ये कौन सा लाइट है यार? व्हाइट लाइट है। हेलो, Red रेड एंड and वायलेट में बिखर गया, और बाहर भी ऐसे निकला। कौन सा लाइट? रेड लाइट। ये कौन सा लाइट? Violet. violet. ये जो रे है ये ऐसे जा रहा है। सुनो हाँ मेरी बात। अच्छा, जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो हम लोग मीन कलर से करते हैं। कौन से कलर से करते हैं बेटा? मीन कलर। मीन कलर कौन सा होता है? Yellow. Yellow. येलो जो रे अंदर से गया, वही रे जब बाहर आया तो दिस वाज पैरेलल टू दिस रे। हेलो, बात समझ आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या हुआ? डिस्पर्शन तो हुआ, बिखर तो गए कलर, मगर डिविएशन ऑफ द मीन कलर, मीन कलर का Parallel. डिविएशन नहीं हुआ। मीन कलर का डिविएशन नहीं हुआ मतलब डिविएशन हुआ ही नहीं ना पूरे सब दिखे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिकॉज जब भी हम लोग मीन की बात करते हैं मतलब सब आ गया ना उसमें। एवरेज जब आप निकालते हो मार्क्स का, मतलब उसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब आ गया ना यार। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम समझेगा, इसका फोटो खींच लो, ये नहीं है बुक के अंदर, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? Yes, sir. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. ओके, अभी हम लोग
अभी हम लोग इसके डेरिवेशन की बात करते, थोड़ा ध्यान देना, 5-10 मिनट और है, डेरिवेशन थोड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. सो वी आर डूइंग ओके डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन. अब मैं जनरल डायग्राम बना लेता हूँ. डायग्राम आपको पता चल गया है. जनरल डायग्राम, दो प्रिज्म बना लेंगे, एक ए रहेगा और एक ए डैश रहेगा. ये कौन सा ग्लास है? ब्राउन. ये कौन सा ग्लास है? फ्लिंट Flint. ग्लास. रे जाएगा, बेंड होगा, बाहर आएगा. ओके, तो हमको मतलब नहीं है. रे गया, बेंड हुआ, फिर से बेंड हुआ और फिर से बाहर आ गया. जनरल कंडीशन बता रहा हूं. अच्छा, हाउ मेनी प्रिज्म्स आर देयर? हाउ मेनी प्रिज्म्स आर देयर? बोलो यार. टू प्रिज्म्स आर देयर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर डिविएशन? डिविएशन का जनरल फार्मूला आपको मालूम है? a mu minus 1. Yes, sir. So can anyone tell me what is the deviation by the first prism? A mu minus 1. Okay, इसका mu पकड़ते हैं और इसका mu पकड़ता है mu dash. चलेगा ना? Yes, sir. What is the deviation by the second prism? A mu dash minus. Hello. Hello. अच्छा, can anyone tell me what is the net deviation? Some addition of both. नहीं, एडिशन नहीं रहेगा, दोनों उल्टे हैं. Subtract. तो आपको मालूम है कि ये जो रे प्रिज्म में बेंड होता है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस. पहले वाले का बेस नीचे है, दूसरे वाले का बेस ऊपर है. तो एक अगर क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो दूसरा वाला कहाँ मोड़ने वाला है? एंटी-क्लॉकवाइज. तो ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2. हेलो, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. मैं सिर्फ डिराइव करके आपके हाथ में दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए. तो डेल्टा नेट क्या हो जाएगा? ए म्यू माइनस 1 माइनस ए डैश म्यू डैश माइनस 1. हेलो हेलो Yes, sir. हेलो हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? इसको पकड़ते हैं Yes. इक्वेशन नंबर 1. ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? नेट. क्या भाई? Deviation. अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो. लास्ट डेरिवेशन है यार, याद नहीं रखना है, बट अगर कुछ आ गया, एडवांस में आ गया, तो ये बेस बन के आगे बढ़ेंगे ना हम लोग फिर. हेलो. Yes, sir. हाँ भाई, आगे बढ़ेंगे. अच्छा, अगर मैं यही चीज येलो कलर की बात करूं, डेल्टा नेट फॉर येलो कलर, इसको कैसे लिखूंगा? ए म्यू येलो माइनस 1 ए डैश म्यू येलो डैश माइनस 1. हेलो. Yes, sir. ये तो नेट है. नेट नेट में बहुत सारे कलर्स आएंगे ना, एक थोड़ी आएगा. मगर हम लोग जब व्हाइट लाइट की बात करते हैं तब हम लोग उसके एवरेज को क्या पकड़ते हैं? Yellow. येलो पकड़ते हैं ना बेटा. तो इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Because when we are talking about monochromatic light, equation number 1 is important. When you are talking about polychromatic light or white light, the equation number 2 is important. Yes or no, sir? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्शन की. एंगुलर डिस्पर्शन. एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो इट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. हेलो. Yes, sir. डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अच्छा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इट इज ए म्यू ई माइनस म्यू आर. ए Yes, sir. म्यू ई माइनस म्यू आर. ए म्यू ई माइनस म्यू आर. याद है क्या भाई? Yes. तो दो प्रिज्म है यहाँ पर फिर से, तो इट विल बिकम ए म्यू वी डैश म्यू वी माइनस म्यू आर पहले वाले का, माइनस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश दूसरे वाले का. हेलो. Yes, sir. ये समझा क्या? Yes. पहले वाले का ये हो गया एंगुलर डिस्पर्शन और दूसरे वाले का एंगुलर डिस्पर्शन इधर होगा. सिंस प्रिज्म उल्टे है तो दोनों का एंगुलर डिस्पर्शन भी उल्टा हो जाएगा. गेटिंग इट? Yes, sir. अगर पहले वाला क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज है. ऑलवेज रिमेंबर द बेंडिंग इज टुवर्ड्स द बेस. तो दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है. हेलो हेलो Yes, हेलो sir. हेलो. ये नेट एंगुलर डिस्पर्शन है दोनों का मिला के. अच्छा, इसका और एक फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. अगर आपको याद रहेगा तो इट इज व्हाट सर? इट इज, बोलो यार, आपको याद है ये फॉर्मूला था? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज ए म्यू वी माइनस म्यू आर. ये याद है? ए म्यू वी माइनस म्यू आर याद आ रहा है? ये तो पहला फॉर्मूला जो हमने लिखा, बराबर.
अच्छा, और एक फॉर्मूला था डिस्पर्सिव पावर का, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन Delta डेल्टा वाई, दैट इज ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस y 1. minus 1. हेलो, Yes, sir. तो व्हाट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इक्वल टू Omega ओमेगा into mu y इनटू म्यू minus वाई 1. माइनस 1. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो चीज है ये तो ये रहेगा ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस 1 माइनस ए डैश ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1. Yes, sir. हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग द डेरिवेशन मैन? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है. हाँ, ठीक है. अब मेरी एक बात सुनो जरा, ये सब इक्वेशंस मैंने बना लिया. अरे यार हो के भाग गए सब लोग हैं. कम ऑन, ये देखो क्लियर है. चलो अब इधर आते हैं पहले वाले प्रिज्म पे. पहले वाला प्रिज्म का नाम क्या है? पहले वाले प्रिज्म का नाम क्या है? नहीं नहीं, ये नाम क्या है? दिख रहा है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन ना. हेलो, ये पहले वाला जो स्लैब है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? Dispersion without Dispersion without DV. मतलब डिस्पर्शन तो हो रहा है, डिविएशन नहीं हो रहा है. अब इधर ध्यान दो, मतलब क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही है इन दोनों इक्वेशन में से, ये और ये इक्वेशन में से. नाम क्या इंडिकेट कर रहा है उसका? अरे बोलो, क्या इंडिकेट कर रहा है नाम? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? क्या नाम था उसका? Dispersion हो रहा है but deviation नहीं हो रहा. डिस्पर्शन हो रहा है मगर डिविएशन नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या नहीं हो रहा है? टू इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 4 कौन सा जीरो है? हेलो, पढ़ो equation. पढ़ो फिर से, एक मिनट इधर पढ़ो, फिर से पढ़ो यार, पढ़ो ये फिर से पढ़ो. एक मिनट पढ़ो. डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन मतलब डिविएशन नहीं हो रहा है. कौन से को जीरो इक्वेट कर दूं मैं? 2. 2 को जीरो इक्वेट कर दूं? Yes, ये sir. बोलो मैन, Yes, बोलो sir. हाँ यस सर. यार. आपको आंसर सामने दे रहा हूं मैं, सामने दे रहा हूं. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे फॉर्मूलाज आप याद करके मर जाएंगे यार. गेटिंग इट? यहाँ पर एज द नेम इंडिकेट्स, क्या नेम है? पहले वाले का नाम क्या था? जल्दी बोलो. Dispersion without Dispersion deviation. without deviation. क्या चीज को जीरो बना देना है? Equation 2. Delta net y. डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिविएशन नहीं हो रहा है मतलब ये चीज नहीं हो रही है. तो कैन आई से Hello, अगर ये जीरो yes. है तो कैन आई से ए म्यू वाई माइनस 1 शुड बिकम इक्वल टू ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1. Yes, हेलो, sir. और दूसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा? ये तो इक्वेशन नंबर 4 कॉपी कर दो ना सीधा. हेलो, Yes, sir. ए ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 माइनस ए डैश ओमेगा डैश. हेलो, म्यू वाई डैश माइनस 1. हेलो, इन दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे नंबर के साथ में तो आपको आंसर मिल जाएगा. गेटिंग इट और नॉट? Yes, हेलो, sir. अच्छा दूसरे वाले इक्वेशन का नाम क्या है? दूसरे वाले स्लैब का नाम क्या था? डिविएशन Without dispersion. विदाउट डिस्पर्शन. अब मेरे बात सुनो, अब किसको जीरो मारना है? कम ऑन, किसको One. जीरो? 1 and 3. विदाउट 1 goes. डिस्पर्शन. विदाउट डिस्पर्शन तो डिविएशन तो हो रहा है, Yes, sir. डिविएशन तो हो रहा है, डिविएशन तो हो रहा है बट डिस्पर्शन नहीं हो रहा है. डिस्पर्शन नहीं हो रहा है मतलब किसको जीरो बनाने का है? 3. 3 को. 4 2 और 4 को यूज करो, 1 और 3 को यूज ही मत करो. हेलो, Yes, sir. अरे यार इसको यूज करना है नहीं यूज करना है? मुझे y वाला इक्वेशन यूज कर, येलो वाला इक्वेशन यूज करना है. येलो वाला 4 0. Yes, sir. 4u equal to 0. 4u Yes, sir. इक्वल टू 0. तो इफ आई इक्वेट 4 to 0 क्या मिल गया? देखो जरा, ए ओमेगा म्यू वाई माइनस 1 इज ए डैश ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस 1. हेलो, Yes, sir. Yes, दूसरा वाला sir. क्या मिलेगा? डेल्टा नेट आपको तो मिल गया, ये तो मिल ही जाएगा. ए म्यू वाई माइनस 1 माइनस ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1. हेलो, कितना आसान हो गया आपके लिए जिंदगी. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. मतलब याद करते कौन बैठेगा यार? मुझे तो कभी जिंदगी में याद नहीं होते इक्वेशंस. बट अगर आप इतना बेसिक चीज याद कर सकते हो, ये दोनों इक्वेशंस अगर आप याद कर सकते हो तो आपको दोनों कंडीशंस याद हो जाएंगे. गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और ये दोनों फॉर्मूलाज तो बेसिक फॉर्मूला से ही आया ना, कोई बड़ी बात नहीं है. थोड़ा एक बार डेरिवेशन आप लोग देख लेना तो आपको समझ जाएगा. नीट वालों को ये पोर्शन में नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है. हेलो, जेई वालों को ये आता है एग्जाम में. हेलो, तो
Yes, sir. Just remember that if it comes and that also comes in advance only. ये भी चीज advance में पूछी जाती है. Got it? Yes, sir. Hello. So I have completed the क्या कंप्लीट हो गया भाई, क्या नाम था इसका, प्रिज्म. हेलो, Yes, sir. प्रिज्म खत्म हो चुका है. कल हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड उसके कुछ बेसिक सम्स हम लोग करेंगे. एंड देन परसों से वी कैन स्टार्ट विद अवर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय. Thank you, sir.